वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिता जी आप जी उस दिन गुरु इतिहास सुना रहे थे। सरसा नदी ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੀਤਾਪੁਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 3 ਹਿੱਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ 3 ਜਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਰੋਪੜ, ਕੋਟਲਾ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵੱਲ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ और फतेह जो दादी के साथ थे, जोरावर और फतेह जो दादी के साथ थे,
दाएं की जगह चल दिए वो बाएं हाथ थे। वो दाएं की जगह बाएं भाव इधर सज्जे पासे जाने की जगह खब्बे पासे, ये परिवार का इधर वाले पासे ये जो वंड हुई ये इधर परिवार चल पिया। चलते चलते जा रहे हैं, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने देखा कि छोटे साहिबजादे अते माता जी अते महल नाल नहीं हैं। तो गुरु पातशाह जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहा कि देखो उत्थे वो कित्थे हैं। तो जोगी अल्लाह यार खां जी लिखते हैं कि ਸਿੰਘਾਂ ने जाके उत्थे देखा, हर चंद की तलाश ना पाया निशान कहीं। उन्होंने तलाश की थी पर उत्थे कोई निशान मिलया नहीं, भाव छोटे साहिबजादे नहीं मिले। तो गुरु पातशाह जी के बारे जोगी जी लिखते हैं कि उन्होंने जो तलाश करवाई, हर चंद की तलाश ना पाया निशान कहीं, छोड़ा था जिस जगह पे नहीं थे वहाँ कहीं, पा जाएं फिक्र था ना उन्हें दुश्मना कहीं, माता के साथ चल दिए शहजादगा कहीं। गुरु साहब सोचते जी दुश्मनों के हथ ना आ जान तो उत्थे साडे सिंह जिहड़े हैं मौजूद हैं तो उन्होंने घेरा पा के दुश्मनों घेर लैणगे, उत्थे हाथापाई होएगी, जंग होएगी तो छोटे साहिबजादियां नूं घेरे चों कढ लिआंदा जाएगा। लखते जिगर हजूर के जिस दम बिछड़ गए, जोगी जी लिखते हैं लखते जिगर हजूर के जिस दम बिछड़ गए, पाँव वहीं व फ़क्र से मोहब्बत से गड़ गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़े प्यार नाल उन्हां दे पैर गड़ गए हैं। इत्थे मोह की गल नहीं हो रही है, इत्थे गल हो रही है प्यार की। गुरु के अंदर मोह नहीं होंदा, मोह मल बेवस कीओ। मोह के पहलवान नूं ते गुरु साहब ने मल के बेवस कर दिता है। गुरु पातशाह जी ने देखा कि छोटे साहिबजादे उत्थे नहीं हैं, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ हल्की जी निराशता आई, पर गुरु साहब ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हौसले पस्त नहीं होण दिते, उन्होंने चढ़दी कला विच रखिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नेत्र बंद करके ध्यान करके देखा, गुरु साहब नूं पता है कि वो माता जी दे नाल दाएं पासे जा रहे हैं। तो जोगी जी लिखते हैं, फौरन मराकबे में गए पीरे खुश खसाल, 14 तबक्का कर लिया मालूम पल में हाल। मराकबे मतलब ध्यान विच अंतर ध्यान होए, 14 तबक दा उन्होंने गुरु साहब नूं पता है वो कित्थे हैं। फरमाए जान निसारों से क्यों होते हो निढाल, माता के साथ चल दिए कुर्बान होने लाल, बुनियाद में धर्म की चुनेंगे उदू उन्हें, करतार चाहता है करें सुरख नू उन्हें। वो धर्म की बुनियाद विच चुने जाएंगे, माता जी के नाल चले गए। ऐ ਸਿੰਘੋ तुसी निराश क्यों होंदे हो, चढ़दी कला च रहो, चलो। फिर अगे लिखते हैं, ये कह के फिर हजूर तो चमकौर चल दिए, ये कह के फिर हजूर तो चमकौर चल दिए, हालत पे अपनी कुछ ना किया गौर चल दिए, करतार के ध्यान में फिर फौर चल दिए, राज़ी हुए रज़ा पे बहर तौर चल दिए, जो कुछ वहाँ पे गुजरी ये लिखना मुहाल है, ये मरसिया सुनाना तुम्हें अगले साल है। जोगी जी ने फिर ये रचना अगले साल लिखी है, उदा वो जिक्र करते हैं। अगे लिखते हैं कि जदों माता जी दे नाल छोटे साहिबजादे उंगल पकड़ के चल रहे हैं तो दरिया के किनारे छोटे छोटे साहिबजादे बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं। तो माता जी नूं वो पुछते हैं जो उन्होंने पुछ की थी। जोगी अल्लाह यार खां जी ने बड़े खूबसूरत ढंग नाल लिखी है, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के हाय सूरते माही किधर गए, अब्बा भगा के लश्करे शाही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शौके जंग में, अपना ख्याल तक नहीं जौके तुफंग में। सूरते माही, माही कहते हैं मच्छी नूं, मछली नूं, सूरत मतलब हालत। असी दरिया के किनारे हाँ, साडे सिपाही किधर गए, सिंह किधर गए, सानू दरिया ते छोड़ के राही किधर चले गए, सानू मछली की तरह तड़पा के सूरते माही ते अब्बा साडे पिता जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वो लश्कर नूं लैके किधर चले गए, ते साडे वड्डे भराता वो भी सानू भुल गए। मन्निया उन्होंने जंग का बड़ा शौक सी, शौके जंग में वो जंग नूं देख के उत्साहित होंदे सन, उमाहित होंदे सन, उन्होंने चाओ चढ़दा सी, उन्होंने डोले फड़कते सन, पर जंग के शौक जो सानू भुल गए। ये माता जी नूं छोटे छोटे बच्चे पुछ रहे हैं, साहिबजादे जिहड़े हैं छोटे छोटे साहिबजादे माता जी नूं पुछदे हैं। वो कहंदे हैं कि अगर वो जंग जित के आए सानू मनाण, असीं मनांगे नहीं, असीं रुस जावांगे। जोगी जी ने जिक्र किया है
जब रन अजीत जीत के तशरीफ़ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, हमें गले लगा के कहेंगे वो बार बार, मान जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जिनहार। जिनहार ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣਗੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ, ਇਕਰਾਰ लेंगे सबसे भुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, कह देते हैं यूँ हमको रुलाना ना फिर कभी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਓਗੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। जोगी जी लिखते हैं, बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बेख्तियार रो दिया इस वाला शान ने। ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। कहती थी जी मैं लेके इन्हें किस तरफ को जाऊं, बेटों को और बहुओं को या रब मैं कैसे पाऊं, लगते जिगर के लाल ये दोनों कहाँ छुपाऊं, तुर्कों से राजपूतों से क्यों कर इन्हें बचाऊं, बिपता ज़ियफ़ों में ये क्या मुझ पे पड़ गई, थी कौन सी घड़ी मैं पिसर से बिछड़ गई। माता जी सोचते हैं राजपूत पहाड़ी राजिਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ मैं अपने लाल दे लाल किवें बचावां, मैं अपने बहुआं ਨੂੰ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਠਹਿਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਹੇੜੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜੋ। ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। जोगी जी लिखते हैं, बच्चों का साथ राह कठन सर पे शाम है, सुनसान दस्त 400 हू का मकाम है, होता कहाँ पे देखिए शब को कयाम है, खादम है और कोई ना हमरा गुलाम है, गंगू रसोइया है फ़क्त साथ रह गया, लै दे के रहबरी को ये हयात रह गया। देखो हुण शाम नूं कित्थे जाके कयाम टिकाणा हुंदा है, नाल है गंगू रसोइया, लै दे के बस एक यही नाल है। फिर अगे लिखते हैं जोगी जी कि जदों गंगू कहता है कि माता जी मेरा पिंड करीब आ रहा है, तुसी जल्दी जल्दी छेती छेती मेरे नाल चलो, तो जाके उत्थे असी आराम करते हैं। गंगू रसोइये ने जो देखा ये इज्तिराब, माता से सतगुरु की किया जिसने ये खिताब, गाँव मेरा करीब है चलिए वहाँ जनाब, बागें उठा के आइए पीछे मेरे शिताब। शिताब कहते जल्दी। खेड़ी में जा बिराजे ये अल किस्सा शाम को, कोठा ब्राह्मण ने दिया एक कयाम को। खेड़ी पिंड का नाम है, कोठा तो भाव है कमरा, ब्राह्मण तो भाव गंगू ब्राह्मण। शाम का टाइम सी, उत्थे जाके पहुँचे, अगले दिन की शाम हो गई। शाम नूं गंगू ब्राह्मण ने अपने घर एक कमरा माता जी नूं दिता कि आओ आप जी आके इत्थे विश्राम करो। दिन भर की दौड़ धूप से सबको थकान था, महफूज हर तरह से बज़ाहिर मकान था, बरसों से जिसे खिलाया था वो मेज़बान था, ख़तरे का इस वजह नहीं वहमो गुमान था,
नौकर का घर समझ के वो बेफिक्र हो गए, लग कर गले से दादी के शहजादे सो गए। कितना खूबसूरत लिखते हैं जोगी जी। कहते हैं नौकर का घर सी जिसनों इतने साल खुआया सी, अज वो मेज़बान है तो इत्थे कोई खतरा है नहीं। दादी माँ के गले लग के छोटे साहिबजादे बेफिक्र हो के दिन भर की थकान सी, थकावट सी, आराम नाल सो गए। माता जी दे कोल एक मोहरां दी थैली सी, एक बदरा सी, ते ओ जिहड़ा सी गंगू ने देख लिया सी, ते गंगू जिहड़ा सी उहदा मन बेईमान हो गया। ऐसा नहीं है कि गंगू ने वो सोना पहली वारी देखिया तो इस करके बेईमान हो गया, बेईमानी उहदे अंदर पहले ही सी। अज वो बेईमानी प्रगट हो गई, एकदम बेईमानी नहीं आई, उहदे अंदर पहले ही भरी हुई सी, अज प्रगट हो गई। तो अज उन्होंने मौका लग रहा सी कि अज मेरे घर ठहरन तो मैं चुरा सकदा, चोरी कर सकदा। जिस घर का वो खा रहा सी, जिथों वो रोटी भी खा रहा सी, रोज़ी रोटी भी कमा रहा सी, अज गंगू जिहड़ा वो पाप गुनाह करन जा रहा। और केवल धन चुराना पाप नहीं है, इस तो भी वड्डा पाप जो अगे असीं श्रवण करांगे। जोगी जी लिखते हैं, माता के साथ डब्बा था एक जेवरात का, ललचा जिसे था देख के जी बद सिफात का। कहते हैं कि जब वक्त हुआ आधी रात का, जी में किया ना खौफ कुछ आका की मात का। मोहरों का बदरा और वो डब्बा उड़ा गया, धोखे से ब्राह्मण वो खजाना चुरा गया। अद्धी रात का टाइम होया तो उसने जाके, इत्थे धोखे से दा मतलब है चलाकी नाल, अखां तो ओले हो के छुपा के, बड़ी बेईमानी नाल, शैतानी नाल गंगू ने वो मोहरां दी जिहड़ी थैली सी ना, वो आराम नाल सराणे थल्लों कढ़ के लुका लई। माता जी ये सारी चीज़ देख रहे सन, माता जी सुते नहीं सन। माता जी ने सब देख लिया कि गंगू ने वो मोहरां दी जिहड़ी थैली है वो चुरा लई है, चोरी कर लई है। बदजात बद सिफात वो गंगू निमक हराम, टुकड़ों के सतगुरु के जो पलता रहा मुदाम। घर लेके शहजादों को आया जो बद लगाम, था जर के लूटने को किया ये इंतज़ाम। दुनिया में अपने नाम को बदनाम कर गया, दुश्मन भी जो ना करता वो ये काम कर गया। वो बदजात ये गंगू नूं लानतां पाईयां कि जिस घर का नमक खांदा सी उसे घर चोरी की। गुरु दी माँ का कदे मन विच खौफ नहीं उसने आण दिता कि मेरे गुरु दे माता हन, इन्हां दे करके मेरा परिवार पलदा है। उन्हें कुछ नहीं किया, कोई खौफ नहीं किया, सारियां चीज़ां भुला गया, विसार गया, अकिरतकण हो गया, चोर बन गया। हुण होई सवेर, अल किस्सा जब सवेर को जागी गुरु की माँ, रखे हुए खजाने का पाया ना कुछ निशान। गंगू से बोली लेता है क्यों सब्रे बेकसां, जर ले गया उठा के तू है जिस्ट रू कहाँ। बेहतर था मांग लेता तू हमसे तमाम माल, लेकिन हुआ चुराने से तुझ पर हराम माल। जिस घर का तू गुलाम था उससे दगा किया, लाग करके घर में काम ये क्या बेवफा किया। जर के लिए सवाल क्यों ना बरमला किया, हमसे तो जिसने भी जो मांगा अता किया। माता हूँ कलगीधर की तुझे क्या खबर ना थी, तेरी तरह तो मुझको ज़रा हिरस जर ना थी। माता जी कहते हैं मैं कलगीधर दी माता, तेनू खबर नहीं है, मैनू तो जिसने जो मंगया मैं सब दे दिता है। कश्मीरी पंडित ब्राह्मण आए तो उन्होंने वास्ते मैं अपने पति का सिर दे चुकी हाँ, तो मोहरा ये सिक्के ये सोना चांदी की चीज़ है, मैं तो अपना सिर भी दे सकती हाँ दुनिया खलकत दे भले वास्ते, तैनू मंग लेना चाहिए सी। हुण गंगू कित्थे मन्ने, गंगू कहता चोरी ऊपर से सीना चोरी। वो कहता तुहानू घर लियाण दा ये खिताब मिलिया मैनू, मैं सल्तनत दे नाल रिस्क लिया, अपनी जान दा सल्तनत दे नाल इतना वड्डा जोखिम लिया, उन्हां दे आमने सामने हो गया, अपने घर तुहानू ठहराया, तो तुसी मैनू चोर कह रहे हो। किस पासों चोर कह रहे हो। उल्टा गंगू जिहड़ा सी वो तो उच्ची उच्ची चीकण पै गया, चिल्लाण पै गया। माता जी नू ही अगों कहंदा है कि चोर तो तुसी हो, मूँह छुपाए फिरदे हो तो मैनू चोर कह रहे हो। देखो एक तो उन्हें चोरी की थी, उतों माता जी नू वो बेइज्जत करन पै गया, ऐसे बोल बोलन पै गया जो कदे किसी ने सुपने विच भी ना सोचे होण। जोगी जी अगे लिखते हैं उपदेश मात गुजरी का सुनकर वो बेहया, शर्मिंदा होने की जगह चिल्लाने लग गया। बकता था जोर जोर से देखो गजब है क्या, तुमको पनाह देने की क्या थी यही सज़ा। फिरते हो जहाँ छुपाए हुए खुद नवाब से, कहते हो मुझको चोर ये फिर किस हिसाब से।
ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਦੇਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਏਗਾ, ਪਨਾਹ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੋਰ ਜਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ, ਉਹ ਬਦਰਾ, ਉਹ ਥੈਲੀ ਛੁਪਾ ਲਈ। ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਪਚਾਪ घर से चल दिया फिर वो नमक हराम, पहुंचा वो जिस जगह पे मोरिंडा था जिसका नाम, मुखबिर वहाँ नवाब के रखते थे कुछ कयाम, खुफिया कुछ उनसे करने लगा बदयसर कलाम, मतलब था जिसका घर मेरे सतगुर के लाल हैं, जिनके पकड़ने के सभी खां कमाल हैं। इस तरह गंगू ने धोखा किया और मोरिंडे थाने जाके पहुँचया। उत्थे जाके शिकायत करता है ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।